ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ساس بڑی دائی تھی۔ وہ 70 سال کی تھی پر اب بھی جوان تھی۔ ان کی جوانی کا راز کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب بھی کوئی کیس لینے جاتی تو واپسی میں ہاتھ میں کچھ چھپا کر لاتی اور الماری میں چھپا دیتی۔ مجھے شک تھا کہ ساس کیا لاتی ہے، اس لیے ایک دن ساس غسل خانے ہاتھ دھونے گئی تو باہر سے کنڈی لگا دی، اور جو ہی الماری کا دروازہ کھولا اب کائی آنے لگی، کیونکہ ساس تو اپنے ساتھ حاملہ عورتوں کا۔ میرا نام زینب ہے۔ میرا تعلق شہر اٹک سے ہے۔ یہاں میرے ددیال اور ننیال دونوں رہتے ہیں۔ میں نے ساری عمر یہیں گزاری ہے، دنیا نہیں گھومی۔ میرے ابا مسجد کے مولوی ہیں، لوگوں پہ دم درود بھی کرتے تھے۔ وہ اذان اتنی خوبصورت آواز میں دیتے تھے کہ انسان توجہ سے سنتا، اور جب قرآن پڑھتے تو ایک سحر باندھ دیتے تھے۔ شروع سے وہ اسی پیشے سے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ کام پیسے کے لیے نہیں کیا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے انہیں معاوضہ دیا جاتا تھا۔ کبھی کہیں دم کرنے جاتے یا ختم درود پہ کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے یہی پڑھائی حاصل کی تھی، شروع سے مدرسے میں ہی رہ کر پڑھے تھے۔ دادا جان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا حافظ ہو۔ ابا ان کی خواہش کی خاطر پڑھنے لگے، پھر انہیں مزہ آنے لگا۔ تب سے یہی کرتے آئے تھے۔ جب ابا بالغ ہوئے، گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں، اس لیے دادا نے اپنی بہن سے بات کر کے اپنی بھانجی کا نکاح ابا سے کروا دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں ابا کے لیے ایک اچھی بیوی اور گھر کے لیے اچھی بہو اور ماں ثابت ہوئی تھیں۔ اماں شروع سے کم گو، معصوم اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ ابا کو ان کی یہی ادا پسند تھی، تبھی گھر کا ماحول ہمیشہ پرسکون رہا تھا۔ اماں کپڑے سلائی کرتی تھیں تاکہ معاشی حالات میں ابا کا ہاتھ بٹا سکیں۔ ابا کی حق حلال کی تھوڑی سی کمائی ہی تھی، اماں ہاتھ بٹاتی۔ مجھے اپنی محنت کش ماں پر فخر تھا۔ بڑھتی مہنگائی میں بچوں کے اسکول کے اخراجات اور گھر کا کھانا پینا بھی تو پورا کرنا ہے۔ شکر تھا جس مکان میں ہم رہتے تھے یہ ابا کا اپنا تھا۔ 3 کمرے کا گھر تھا، گزارا اچھے سے چل رہا تھا۔ میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہمیں اس گھر میں رہتے بہت عرصہ گزر گیا۔ ابا کے لیے یہ محلہ بہت پرانا تھا، یہاں سب ابا کی بہت عزت کرتے تھے، بہت سے دینی مسائل کے حل کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابا کی کافی اچھی جان پہچان تھی، عورتیں بھی اماں سے کپڑے سلائی کروانے آیا کرتی تھیں۔ وہ کبھی اپنے گاہک کے کام میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتی تھیں، ان کے ہاتھ میں بڑی صفائی تھی، تبھی تو ڈھیروں کپڑے سلائی کے لیے آتے رہتے تھے۔ کہتی تم جتنی ایمانداری سے مناسب معاوضے میں کام کرتی ہو ویسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میں اور بھائی اماں ابا دونوں کے لاڈلے تھے، کبھی انہوں نے ہمیں ڈانٹا نہیں تھا۔ ہمیں ذرا سا بخار ہو جاتا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ بہت نازوں سے پالا تھا، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے، کبھی کسی جائز خواہش کو رد نہیں کیا تھا۔ میں ذرا سنجیدہ مزاج تھی، جبکہ بھائی شرارتی تھا۔ وہ اپنی شرارتوں سے گھر والوں کی ناک میں دم کیے رکھتا، رونق بھی اسی کے دم سے تھی۔ اماں نے ہمیشہ پیار محبت سے پالا تھا، شرارتوں پہ کبھی ڈانٹ نہیں پڑی تھی، صرف نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ پڑتی تھی۔ اماں کہتی تم میری امید کا دیا ہو، اللہ نے میری زندگی میں تمہارے آنے سے چراغ روشن کر دیے تھے۔ دراصل میرے سے پہلے ابا اماں کی 3 اولادیں عین پیدائش سے 2-3 منٹ بعد فوت ہو گئی تھیں۔ 2 بیٹے اور بیٹی فوت ہو چکے تھے۔ ایک اماں کے لیے اپنی اولاد کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر اسے دنیا میں لانے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر جب اولاد فوت ہو جائے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ ہمیشہ خالی ہاتھ ہی گھر آتی تھیں۔ اماں ابا تو بہت مایوس ہو گئے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ جب ان کی کوئی اولاد ہوتی فوت ہو جاتی تھی، کسی نے کہا علاج کرواؤ۔ اماں اور ابا نے ڈاکٹری علاج بھی کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ نماز میں دعائیں پڑھی، وظیفے کیے، لیکن افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک نے بتایا کہ فلاں حکیم کے پاس جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابا کہتے اب ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے، اگر اس نے ہمیں اولاد دینی ہوئی تو وہ ضرور دے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی آزمائش ہے جس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نہ جانے کیوں ان کی گود ہمیشہ ویران رہ جاتی ہے۔ وہ بہت بیمار رہنے لگیں تو ابا انہیں سمجھاتے تھے کہ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوا کرو، اس نے یقیناً ہمارے لیے بہت بہتر سوچ کر رکھا ہوگا۔ لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو،
कुछ कहते शोहर की दूसरी शादी करवा दो, तो कोई कहती जादू का तोड़ करवाओ। यकीनन किसी ने कोई जादू किया होगा। अम्मा ने अब्बा से दूसरी शादी का कहा तो अब्बा ने डांट कर मना कर दिया कि वो 2 बीवियों में अदल नहीं कर पाएंगे और औलाद अगर उनकी किस्मत में लिखी हुई तो मिल जानी है। शादी को 7 साल होने को आए, 3 बार हमल ज़ाया हो गया। जब चौथी बार हामला हुई तो अम्मा सुबह शाम वजीफा करती। अम्मा ने करीबी मिज़ारों पर मन्नत भी मांगी थी। इस बार उनका हमल ज़ाया नहीं हुआ था। अम्मा बहुत परेशान रहती थी, मेरी बहुत केयर करती। ज़रा सा कुछ होता फौरन डॉक्टर के पास ले जाती थी। मेरे बाद भाई पैदा हुआ, अम्मा पुरसुकून हो गई थी। जो बीमारी रहती थी उनकी बीमारी कहीं दूर भाग गई थी। अल्लाह का शुक्र, जितना अदा करती कम था। मैंने हूबहू नए नक्श अब्बा के चुराए थे। अब्बा अम्मा के घर तो रौनक आ गई थी। अम्मा कहती ये तो घर की शहजादी है। मैं गली के मदरसे में पढ़ती थी। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत शौक था। मेरा भाई अब्बा के साथ जाता था। मस्जिद के साथ मदरसा भी था, वहीं पढ़ता था और शाम को आ जाते थे। मेरी कोई दोस्त नहीं थी, सिर्फ मैं अपने भाई के साथ खेलती थी। लड़कों वाले खेल भी खेलती और लड़कियों वाले भी। मैं अपने भाई की निस्बत ज्यादा ज़हीन थी। वो शरारतों में मुझसे आगे होता था। लोगों का काम है कि आप जो करते हैं उसमें कमी ज़रूर निकालते हैं। पहले औलाद फोत होती तो कह रहे थे कि जादू होगा, औलाद हुई तो इसको मदरसे में ना करवाओ, आजकल अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई का दौर है। इन्हें भरी प्लेटें एक छोटा सा बॉल नजर आ जाए तो इसी बॉल का जिक्र करना है। लोग सिर्फ खामियां देखते हैं। मुझे बहुत खुशी थी। मैं ऐसे घराने में पैदा हुई जहां बेटी और बेटे को बराबर समझा जाता था। यहाँ दीनी तालीम का रुझान था। मेरा भाई मेरे बहुत लाड उठाता था। छोटा होने के बावजूद भी बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखता था। मैं बड़ी होती गई। एक खूबसूरत लड़की थी मैं। हर मामले में सबसे आगे थी। सफाई हो या सलाई, खाना पकाने में भी मेरे हाथ में जायका था। अम्मा कहती थी मेरी बेटी के अल्लाह नसीब अच्छे करे। मैं अभी भी मदरसे में ही पढ़ रही थी। सुबह मदरसे जाती थी, वहां से वापसी पर घर के कामों में हाथ बटाती थी। भाई भी पढ़ रहा था साथ साथ। अब्बा के साथ हर मजलिस में जाया करता था। मेरे वालिदैन जैसे हमें बनाना चाहते थे हम बिल्कुल वैसे थे। मैंने मदरसे की तालीम मुकम्मल की तो अब्बा से इजाज़त देकर मदरसे में पढ़ाने लगी। जब से बड़ी हुई थी मेरे लिए कई रिश्ते आए, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया कि अभी हमें नहीं करनी है। लेकिन जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो वो भी चाहती थी कि अब शादी हो जाए। अब्बा कहते जब हमारी बेटी कहेगी तब शादी करेंगे। मैं अभी मदरसे में पढ़ाना चाहती थी। मोहल्ले में सारे बड़े बच्चों की शादी हो गई थी। अम्मा की सहेली कहती मेरी मानो तो ज़ैनब की शादी करके फ़र्ज़ अदा कर दो, बेटा खुद बड़ा होगा तो कर लेगा। तुम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि इसके इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। नसीबों वाली है तुम्हारी बेटी, इसलिए इसकी कदर करो। अम्मा भी चाहती थी लेकिन अब्बा की वजह से चुप हो जाती थी। मेरे नसीब के लिए बहुत दुआएं मांगती थी कि अल्लाह करे अगले घर में भी राज करो, वो भी तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखे, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करें। एक औरत जो अम्मा की जानने वाली भी थी काफ़ी अरसे से अम्मा से कपड़े सिलाई करवा रही थी। अम्मा को देखकर बोली आपकी बेटी माशाल्लाह से खूबसूरत है। आप कहते तो मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है। अम्मा ने पहले तो इनकार करती रही लेकिन वो बास ना आई। कहती एक बार देखने में क्या हर्ज है। अम्मा ने अब्बा से बात की तो अब्बा कहते जब करनी नहीं तो देखना क्यों। लेकिन कहती वो मुझे बहुत अजीज है, उनको आपकी बेटी जैसी बहू की तलाश है, इसलिए आप कुछ सोचिए। अम्मा ने कहा वैसे भी बालिग हो गई है, आज नहीं तो कल तो शादी करनी ही है। इससे अच्छा नहीं है कि हम इतने अच्छे रिश्ते को एक बार देख ही लें। अब्बा ने हामी भरी तो वो रिश्ते वाली औरत अगले दिन ही एक नफीस सी नौरानी चेहरे वाली औरत को ले आई थी। वो उम्र से भी जरा बूढ़ी नहीं लगती थी, जवान लग रही थी। एक जवान बेटे की माँ थी। अपने इलाके की बहुत पुरानी दाई थी। पहले 2 बेटियों की शादी कर चुकी थी, उनको अपने घर रुखसत कर चुकी थी। अब वो चाहती थी कि उनके बेटे का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। कहती मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, जैसे सुना वैसा ही पाया। उनके शौहर पैरालाइज्ड थे, इतने अरसे से बिस्तर पर थे, अपने जिस्म में हरकत नहीं कर सकते थे। ये बीमारी में काफ़ी अरसे से मुब्तला है। उनका बेटा उस्ताद था, एक स्कूल में पढ़ाता था, इसी के लिए रिश्ते लाई थी। अब्बा को तस्वीर भी दिखाई, देखने से तो अच्छा लग रहा था। वो जब आई बहुत मोहब्बत से अम्मा से मिली थी, उन्हें मैं पसंद आई थी। उन्होंने अपने घर आने की दावत भी दी थी ताकि उनके घर जाकर लोग देखकर ही रिश्ता फाइनली पक्का हो सके।
अब्बा ने इर्द गिर्द के लोगों से, स्कूल के इंतजामिया से पता करवाया था। सब ने ही तारीफ की थी कि बहुत शरीफ बच्चा है। फिर भी एक दिली तस्कीन के लिए अब्बा अम्मा उनके घर गए थे। मोहल्ले वाली औरतें मेरे होने वाली सास की बहुत तारीफ कर रही थी। अम्मा को भी वो लोग अब पसंद आए थे। अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। बाकी शादी की डेट के मामलात औरतों के जिम्मे कर दिए थे। मैं इतनी जल्दी शादी का सोचकर ही परेशान हो रही थी। अब्बा अम्मा और भाई को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। कभी उनके बगैर रही नहीं थी। भाई कहता तुम्हारा ससुराल करीब ही है, कभी तुम आ जाया करना, कभी मैं तुमसे मिल आया करूँगा। मुझे बेहद उस पर प्यार आया कि मेरा भाई मेरी इतनी फिक्र करता है। मेरी शादी महीने बाद होनी थी। अम्मा ने आजकल किसी के कपड़े लेने बंद कर दिए थे। वो मेरे जहेज में रखने के लिए कपड़े सिलाई कर रही थीं। कभी अब्बा के साथ बाजार का चक्कर लगाती तो कभी भाई के साथ जाती थी। सारी चीज़ें वो मेरी पसंद के मुताबिक ले रही थी। मोहल्ले की औरतें भी दुआएं देती कि आप लोग जितने अच्छे हैं, अल्लाह करे आगे आप लोगों की बेटी के नसीब भी अच्छे हों। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, पूरे घर में गहमा गहमी थी। एक महीना चुटकियों में गुजर गया, पता भी न चला कि महीना गुजर गया है। मेरी शादी का दिन आ पहुंचा था। मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था। बार बार अम्मा अब्बा की आंखें नम हो रही थीं। अब्बा कहते इस तरह लगता है अभी कल की बात है कि ये पैदा हुई और आज ये रुखसत होगी। इतनी जल्दी बेटियां बड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है कि उनके अगले घर जाने का वक्त आ जाता है। भाई भी उदास उदास सा फिर रहा था। हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। अब जाने से वो उदास था। घर में कभी मोबाइल और टीवी तो यूज़ ना किया। अब्बा के पास बटनों वाला मोबाइल होता था और घर थे जिनकी जगह इन चीज़ों के आते ही रिश्तों में दूरियां बढ़ गई थीं। हर कोई अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरा शादी का जोड़ा भेज दिया था। बड़ी दो शादीशुदा नंदे भी आई थीं। मेरी सास काफ़ी बड़ी उम्र की थी, लेकिन न जाने क्या बात थी, आज भी हुस्न बरकरार था। 5 वक्त की नमाजी थी। अम्मा ने कहा कि अपनी सास को माँ समझना, उनकी खिदमत करना एक बेटी के लिए कितनी मुश्किल होता है। एक घर को छोड़कर अगले घर जाना, इनके दिल में जगह बनाना। जिस घर में पली बड़ी होती हैं, जहाँ उसका दिल लगा होता है, माँ बाप को छोड़कर जाना आसान तो नहीं होता। मैं अपनी शादी पर बहुत रो रही थी। बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अब घर से जाना है। आंखें नम हो जाती थी। अम्मा तो खुद रो रही थी। बारात आई, सही धूमधाम से उनका वेलकम किया। अब्बा के साथ सारे इंतजामात भाई ने देखे थे। निकाह के होते ही मेरी सास ने सोने के 2 कंगन मेरे हाथ में पहना दिए थे। कहती अब से तुम मेरी बेटी हो। मैंने भी 2 बेटियां ब्याही हैं। मुझे पता है ये सब बेटियों के लिए कितना मुश्किल होता है, इसलिए तुम परेशान न हो। तुम्हें मैं हर हफ्ते मैके भेज दिया करूँगी। खुद भी बहू नहीं बेटी समझ के ले जा रही हूँ। उनकी बातों से अम्मा का दिल भी मुतमईन हो गया था। मैं अब्बा के गले लगकर खूब रोई थी। मेरा दिल बहुत उदास था। अब्बा कहते तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले रहेंगे। जब भी कोई मुश्किल हो अपने अब्बा के पास आ जाना। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम अपने ससुराल का बुरे से बुरा रवैया बर्दाश्त करना। सास और नंद ने मुझे गाड़ी में बिठाया। सफ़र कैसे गुजरा समझ ना लगे। अपने दिल को समझा रही थी कि अब ससुराल में दिल लगाना है। मेरे ससुराल में बहुत धूमधाम से वेलकम किया गया। मेरी नंदे मुझे शौहर के कमरे में बिठा कर चली गई थीं। मेरे शौहर कामरान बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी उम्र मुझसे कोई 3-4 साल बड़ी थी। अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। अपनी बहनों की शादी करवाई थी। उसकी बहनें कहती कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले, अपनी बहनों पर जान निसार करने वाले और अपने बाप का ख्याल रखने वाले थे। मेरी बहुत इज्जत करते थे। थोड़ी देर बाद शौहर कमरे में आए। वो बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कहते आपके वालिदैन से वादा किया है कि आपकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। उनको हर रिश्ते का पास रखना आता था। मेरी शादी बहुत अच्छे से जा रही थी। मेरा दिल यहाँ लग गया था। मेरे शौहर भी घर ही होते थे। उन्होंने मुझे रुमानवी गिफ्ट में सोने की चेन दी थी। अम्मा बहुत खुश थीं। कहती मेरी अल्लाह ने सारी दुआएं सुन ली। मैं कहती थी ना अल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छे नसीब करेगा। अम्मा कहती थी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है। बेटियों से डर नहीं लगता, बल्कि डर तो उनके नसीब से लगता है। अब्बा कहते तुम जब से गई हो घर वीरान हो गया है। मेरे शौहर मुझे 2 दिन बाद मिलवाने ले जाते थे। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे।
मेरी नंदें कुछ दिन यही रहीं, मुझे घर का कोई काम न करने देती। फिर उनका भी ससुराल जाना ज़रूरी था। उनके जाने से मैं उदास हो गई थी। सास ने शौहर को कहा कि इसे मेके ले जाओ। अम्मा के पास गई, खुश हो गई। मेरे शौहर मेरे माँ बाप को अपना समझते थे। मेरा भाई तो उनकी बहुत तारीफ करता था। सब कहते थे तुम्हारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हैं। मेरे ससुर बहुत बीमार रहते थे, बहुत बूढ़े थे, उनका इलाज चल रहा था। मैं और सास इनकी खिदमत करते थे। बाप बहुत बड़ा सहारा होता है। अगर वो बीमार होता है ऐसे लगता जैसे दुनिया रूठ गई है। वालदैन बहुत बड़ी नेमत होते हैं, इनका होना ही आपके लिए बहुत होता है। मेरी शादी को महीना हो गया था। मेरे ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। अब उनकी उम्र भी हो गई थी। उन्हें बिस्तर पर पड़े 20 साल हो गए थे। अब तबीयत खराबी पे अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। 2 दिन अस्पताल रहे, फिर बेहतरी पर आए तो वापस भेज दिया। घर आते ही 2 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई। दोबारा अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो गई थी। उनका इंतकाल हो गया था। मेरी सास इद्दत में चली गईं। मैं सारे घर का काम करती थी। औरतें ताज़ियत के लिए आती थीं। मैं इन्हें सब कुछ देती थी। उनके हाथ में बहुत शफा थी। दूर दूर से औरतें अपने केस लेकर आती थीं। कहती आप मौजज़ा करती हैं, आप जो केस करती हैं वो कामयाब हो जाता है। सास बड़ी दाई थी, वो 70 साल की थी, पर अब भी जवान थी। इनकी बेटियों के बच्चे हो गए थे, नानी बन गई थी। लेकिन न जाने क्या कशिश थी कि उनका हुस्न अब भी वैसे का वैसा था। उनकी जवानी का राज कोई नहीं जानता था, लेकिन जब भी कोई केस लेने जाती तो वापसी में हाथों में कुछ छुपा कर लाती और अलमारी में छुपा देती थी। मैं भी उनका राज जानना चाहती थी ताकि मैं भी जवान रह सकूं। लेकिन कोई ऐसी बात ना थी, ना ही वो खूबसूरत होने वाली कोई क्रीम इस्तेमाल करती थी और ना ही कुछ और। मुझे शक था कि सास क्या लाती हैं, इसलिए एक दिन सास गुसल खाने हाथ धोने गई तो बाहर से कुंडी लगा दी और जो ही अलमारी का दरवाज़ा खोला अबकाई आने लगी, क्योंकि सास तो अपने साथ हामला औरतों का दुपट्टा लाती थी जिसमें हल्का सा खून लगा होता। अजीब सी उनसे बदबू आ रही थी। मैं उन्हें देख रही थी कि अचानक दरवाज़ा खटकने लगा। मैं डर गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सास कहती क्या कर रही थी? मैंने कहा कुछ नहीं, गलती से दरवाज़ा लग गया। सास को मेरी बात पर यकीन न आया। वो शक भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि बस सफाई देख रही थी। दिन गुजरते गए। मैंने सास का पीछा करना शुरू किया। अब वो मोहतात रहती थी। किसी केस को करके वापस आती तो मुझे किसी काम पर लगा देती थी। एक दिन वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुछ करने लगी। मैं खिड़की में खड़ी होकर देखने लगी। वो कुछ पढ़ रही थी। मैं हैरानी से देख रही थी कि वो क्या कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इस खून आलूदा दुपट्टे को ओढ़कर पढ़ने लगी। मैं आगे हुई। कमरे में अगरबत्तियां लगी हुई थी, खुशबू ही खुशबू थी। मैं हैरानी से देख रही थी। फिर पढ़कर उनमें अजीब रूह आ गई। वो रक्स कर रही थी। सबके सामने इतनी मासूम बनती थी और यहाँ क्या कर रही थी? नमाजी परहेजी थी। न जाने क्या हो गया था जो ऐसी हरकतें कर रही थी। मुझे उनकी हालत ठीक नहीं लगी। मैं हैरान थी कि उन्हें क्या हो गया है। ये ऐसी तो ना थी। जब बाहर आई तो पसीना आया हुआ था। मुझे सामने देखकर इग्नोर कर गई। मैं उनके रास्ते में आ गई। मैं उन्हें गौर से देखा तो घबरा गई। मुझे उनकी हरकतें बहुत मशकूक लगी थी। मैंने पूछा आप क्या कर रही थी? कमरे में घुसकर क्या कर रही थी? ऐसे रक्स कर रही थी? मैंने आपको सब करते देख लिया। पहले गुस्से से बोली तुम मेरा पीछा कर रही थी। मैंने कहा आप मुझे यूं घुमाए नहीं, हकीकत बताएं। थोड़ी देर तक वो मुझे देखती रही। कहती तुम मुझसे वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगी, इसी शर्त पे बताऊंगी। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे सच बताइए, तो मैं वाकई किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना आपके बेटे को सब बता दूंगी। बोली मैं शुरू से बहुत खूबसूरत थी, मुझ पे जिन आशिक हो गया तो मैं खुद नहीं करती थी, ये सब कुछ वो जिन करवाता था। मैंने कहा ऐसे कैसे कहती? एक बार मैं वापस आ रही थी तो मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं चलने लगी। अचानक मुझे अपना आप भारीपन महसूस होने लगा। जैसे ही घर आई तो मेरे दुपट्टे पर खून था। ये तब से होता आ रहा है। इसके बाद सब कुछ ठीक रहा। तब तुम्हारे ससुर से मेरी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ था। मैं दाई का काम अपनी सास से सीख कर करती थी। मुझे इसमें महारत आ गई थी। एक दिन मैं केस करने गई तो न जाने उसके दुपट्टे में क्या नजर आया कि उठा कर ले आई और कमरे में बंद करके रक्स करने लगी। मेरे शौहर घर पर नहीं थे, इसलिए किसी को पता न चला। थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई।
जब होश आया तो मैं घबरा गई। इसके बाद ये हमेशा से होता चला रहा है। मैंने कहा कि आपने तोड़ क्यों नहीं करवाया, तो बोली कि मैंने करवाने की कोशिश की, ये जिन बहुत ताकतवर है। उन्होंने सबसे छुपकर तोड़ करवाने की कोशिश की थी। उनकी पक्की सहेली उन्हें एक जाने माने आदमी के पास ले गई थी। उसने इस मौलवी को मार दिया। मैं डर गई थी। शुक्र था ये बात फैली नहीं कि मेरी वजह से उनकी मौत हुई। मैं किसी की मौत का सबब नहीं बनना चाहती थी। कहती मैं शर्मिंदगी में हूँ। मेरे दोस्त भी हैरान थे। उसने दोबारा किसी बाबा का नहीं बताया। मैंने कहा आप फिर केस करना छोड़ देती, इतनी तकलीफ में हैं। कहती मैंने ये भी किया। एक गरीब औरत जिनका आगे पीछे कोई ना था, वो इसरार करने लगी। फिर जिन मुझे मज़ीद तंग करने लगा। अचानक बेहोश हो जाती थी, कभी रात को निकलकर यूं ही चलने लगती थी। फिर मैंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छे दिल की थी। अभी भी मैं जब किसी का केस करके आती हूँ तो मुझे ये होने लगता है। जब वहाँ से दुपट्टा लाती हूँ तो मैं अपने आप में नहीं होती हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। कहती मैं खुद तंग आ गई हूँ। अपने बेटे और बेटियों को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान होंगे। ये जुन मुझे जीने नहीं देता। मुझे इन पे तरस आया कि बेचारी इतने साल से मुश्किलें काट रही हैं। मैं एक बाबा को जानती थी जो अब्बा के जानने वाले थे। अब्बा जब दम करके कोई काम ना कर सके उन्हीं के पास भेजते थे। मेरे दिल में आया कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने कहा मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो बहुत पक्के हैं। जो काम करता है पक्का करता है। इतने लोग दूर दूर से उनके पास जिन निकालने के लिए आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी सास कहती अगर किसी को पता चल गया या कुछ हो गया तो बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने उन्हें हिम्मत दी। पहले वो नहीं मानी, फिर मैंने बेहद इसरार किया तो मान गईं। मुझे यकीन था कि वो ठीक हो जाएंगी। अल्लाह अपने बंदों पे ज्यादा मुश्किलात नहीं डालता है। अचानक उनका इमरजेंसी का केस आ गया। वो गई, वापस आई तो उनके हाथ में दुपट्टा था। शर्मिंदा सी चलती अपने कमरे में बंद हो गई। जब बाहर निकली तो पसीना पसीना थी। मैंने पानी का ग्लास पिलाया। कहती तुमने इस राज को राज रखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा कि आप अपनी बेटी कहती हैं, इसीलिए बेफिक्र रहे, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा जुमेरात को जाएंगे। अगली जुमेरात को और मैं उनके साथ गई तो उनके आस्थाने पे बहुत से लोग जमा थे। मेरे शौहर काम के सिलसिले में बाहर गए थे। फिर भी एहतियात से हम लोग काली चादर में मुंह लपेट कर गए थे ताकि कोई पहचान न सके। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सफाई देंगे। वहाँ पहले से बहुत रश था और सब किसी न किसी दुख को लेकर आई हुई थी। एक लड़की को पहले से जिन पड़ रहे थे। वो लोग इसके इर्द गिर्द जमा थे। वो कुछ पढ़ रहा था। जिन बहुत जिद्दी था। वो लड़की खुद को ही मार रही थी। जिस्म लहू लुहान हुआ था। मेरी सास को घबराहट होने लगी। वो कहता मैं इस बच्ची को मार दूंगा लेकिन इसमें से नहीं निकलूंगा। इस बच्ची को तड़पते देखकर मुझे कुछ हुआ। न जाने वो कितनी तकलीफ में रही थी। कुछ देर बाद वो पुरसकून हुई। उसकी चीखें कम हुई। वो जो आदमी मौलाना थे वो पढ़ पढ़कर पसीना पसीना हुए थे। हमारे चौथे नंबर पर बारी थी। मेरी सास कहती अगर उसने मार दिया या फिर उसने तुम्हें या मुझे कुछ कर दिया। डर तो मुझे भी लग रहा था कि अगर वाकई मेरी सास को कुछ हो गया तो क्या होगा। क्या कहूँगी अपने शौहर को। वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। बिलाखिर एक तवील इंतजार के बाद मेरी बारी आ गई। वो हमें देखकर काफ़ी देर खामोश रहे। फिर कहते क्या मसला है। मैंने बताया कि मेरी सास पे जिन आशिक है। मेरी सास उन्हें तफसील बताने लगी। वो चुप करके सुनने लगे। वो जिसका केस करने जाती इस औरत का दुपट्टा चोरी करके ले आती थी। बाबा ने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। उनका आस्ताने में बहुत अंधेरा सा था। मेरी सास ने सफ़ेद चादर ले रखी थी। लॉन का सूट पहना हुआ था। वो कुछ पढ़कर चादर पे पानी डालने लगा। वो सफ़ेद पानी सुर्ख में बदल गया। वो पढ़ने लगी। मेरी सास मचलने लगी। कहती ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम बंद कर दो। वो बाबा बगैर कुछ कहे पढ़ने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास को पसीना आने लगा। वो तड़पती तड़पती बेहोश हो गई। वो कहते जब होश आए तो ये काला धागा बांध देना। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे कि अगर होश ना आया तो क्या होगा। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। अल्लाह ताला मेरी सास को कुछ ना करना। अल्लाह इन्हें मेरी जिंदगी भी लगा दे। मेरा घर तबाह हो जाएगा। मेरा शौहर तो मुझे घर से निकाल देगा। सब मुझे ही कातिल समझेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ गया। उनके होश में आते ही उनके बाजू पे धागा बांध दिया। मैंने कहा सासू माँ आपने तो मुझे डरा ही दिया था।
अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? बाबा कहते, वो रूह को मैंने काबू कर लिया है, अब इन्हें कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी चाहे कर सकती हैं, अब उन्हें वो कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, बस ये धागा हाथ से नहीं उतारना है। उन्होंने हमें पानी दिया कि पूरे घर में छिड़काव करना, मैंने वही किया, उन्हें घर ले आई, पूरे घर में छिड़काव किया, किसी को कोई खबर भी ना हुई थी। कुछ दिन गुजरे, वो बिल्कुल ठीक रहीं। बाबा के पास दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि अब आने की जरूरत नहीं है। सास ने उन्हें हदिया दिया, आप लोग जा सकते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते वापस आ गए थे। मेरी सास मेरी मशकूर थी, कहती तुम ना होती तो मैं सारी उम्र इसी डर में गुजार देती और कुछ ना करती। वो अब भी केस करने जाती थी, लेकिन दुपट्टा साथ ना लाती, इस जन से आजाद हो गई थी। धागा उन्होंने हाथ से नहीं निकाला था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता था, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाकर भेजा है, ये बात हमने राज ही रखनी थी। अब उन्होंने सारे पुराने खून आलूदा दुपट्टों को आग लगा दी थी। मेरे शौहर को कुछ ना बताया था। मेरी अम्मा के यहाँ हफ्ते के दिन जाना मामूल था। मेरे भाई ने मस्जिद में अमामत के फराइज सरंजाम देने शुरू कर दिए थे। अम्मा भाई के लिए लड़की की तलाश कर रही थी। एक जगह रिश्ता देखने जाना था, मुझे भी साथ जाना था। मैं अपनी सास से इजाज़त लेकर चली गई थी। लड़की हमें पसंद आई थी, मासूम सी थी, उसकी जोड़ी मेरे भाई के साथ अच्छी लगनी थी। अम्मा ने शादी की डेट मांगी थी, वो लोग भी खुशी खुशी मान गए थे। उन्हें इससे अच्छा घर नहीं मिलना था। अम्मा उससे अपनी अंगूठी पहना आई थी। लड़की के वालिद भी नमाजी थे, अब्बा की उनसे अच्छी दोस्ती थी। अब्बू की तरफ से तो रिश्ता ठीक था। भाई से पूछा, जो आप लोगों को ठीक लगता है आप लोग कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने कहा वालिदैन के फैसले बिल्कुल ठीक होते हैं, उन्होंने जो मेरे लिए किया था मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी नंदे भी बहुत अच्छी थी। जब साल बाद वो आती तो इतने तहाइफ लाती। वो रवायती नंद वाली लड़ाई झगड़े नहीं थे, हमारी आपस में बहुत बनती थी। मेरे शौहर मुझे अक्सर तंग करते कि इतनी मोहब्बत तो असल बहनों में भी नहीं होती जितनी तुम लोगों में है। मोहल्ले की औरतें सास को कहती, आपने चुनकर अपने जैसी बहू तलाश की है, जो आपके घर को जोड़े हुए है। ऐसी बहू भी किस्मत वालों को मिलती है। एक हमारी बहुएं हैं, आते ही बेटों को अलग कर दिया। वो बेटों के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी। मेरी सास कहती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब आप किसी की बेटी को अपनी बेटी समझेंगे तो कोई आपके घर को भी अपना घर समझेगी। वो चुप हो गई। मेरी नंदे मेरे लिए बड़ी बहनों की तरह थी। मैं ज्यादातर काम में उनसे मशवरे लेती थी। अम्मा कहती, तेरी तरफ से मैं पुरसकून हूँ, तुझे इतना अच्छा घर मिला है। मेरी सास तो मुझे बेटी की तरह रखती थी। कहती, तू मेरे घर की बहार हो। मेरी नंद उम्मीद से हुई। कहती, आप हमें कब खुशखबरी सुना रही हैं? ये तो अल्लाह के काम होते हैं, वो जिसे चाहता है औलाद से नवाजता है। अल्लाह मुझे भी ज़रूर सुनाता। मुझे उम्मीद थी जल्द ही मैं भी माँ बन जाऊंगी। मेरे शौहर और सास को इस मौके का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। मेरी शादी को मज़ीद 2 माह गुजरे तो अल्लाह ने मुझे भी ये खुशखबरी सुना दी थी। मेरे शौहर तो बहुत खुश थे। मेरी सास ने मुझे कहा कि अब मैं तुझे कोई काम न करने दूंगी। मुझे पलकों पे बिठा कर रखते थे। 9 महीने बाद भाई की शादी तय पाई थी। लड़की भी पढ़ाई मुकम्मल कर लेती, तब तक मैं भी फारिग हो जाती। मेरी डिलीवरी मेरी सास ने खुद की थी। मेरे शौहर तो इतने खुश थे, वो कहते बेटा हो या बेटी, बस फर्मा बरदार होना चाहिए, सेहतमंद हो। मुझे अपने शौहर की ये सोच बहुत पसंद आई। घर में भाई की शादियों की तैयारियां चल रही थीं। मेरा इकलौता भाई था, मेरे इतने अरमान थे। मेरी सास कहती कि इसे छोड़ आओ ताकि भाई की शादी में मज़े कर सके। मेरे जाने के बाद घर के काम वो करती थी। उन्होंने कभी किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई थी। मैं ज़्यादातर मैके में ही रह रही थी। भाई को भी खूब तंग किया, भाई का कमरा खूब सजाया। इसकी शादी का भी दिन आ गया था। भाभी बहुत प्यारी थी। अम्मा ने उसे बेटियों की तरह रखा हुआ था। मेरी उनसे बहुत बनती थी। अम्मा को कोई काम न करने देती थी। भाई भी खुश था। अब्बा कहते, हम दोनों के फ़र्ज अदा करके फारिग हो गए, अब हम सुकून से मर सकते हैं। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों करते हैं, अभी तो आपने और खुशियां देखनी है। वक्त पर लगा कर गुजर गया और हमारी खुशियों को 3 साल हो गए। जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरे शौहर की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। अल्लाह ने एक बेटे और एक बेटी से नवाजा। मेरी नंदें अपने घरों में खुश थीं। मैं भी महीने बाद अब बच्चों की मसरूफियात की वजह से मैके जा पाती थी। भाई की भी माशाल्लाह से 2 जुड़वां बेटियां थीं, जो अब्बा अम्मा के घर रौनक लगाए रखती थीं।
मैं इस जिन के बारे में सारा राज ही रखा। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं हुई थी। अब वो भी वक्त के साथ बूढ़ी हो गई थी। धागा अब भी बांधा हुआ था। मेरे बच्चे उनके लाडले थे। हर वक्त दादी दादी लगी रहती थी। वो इनके पसंद के खाने बनाती थी, उनकी खिदमत में लगी रहती थी। कोई बात इनकी मोड़ती ना थी। मेरी सास मेरी मशकूर थी कि मैंने उनके भरम को नहीं तोड़ा था। मेरे दिल में उनका मुकाम मज़ीद बढ़ गया था। मैं उनको माँ की तरह रखती थी, उनकी वैसे ही इज्जत करती थी जैसे अपनी माँ की करती थी। वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी। मेरी सास के इस राज को मैंने राज ही रखा। बदगुमानियों के सारे बादल झट गए थे और आसानियाँ ही आसानियाँ थीं। मैंने ज़िंदगी में सीख लिया था कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आपको वहाँ से निकाल लाता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। मुश्किलात या खुशियाँ हमेशा के लिए होती हैं। मैंने राज रखा तो उन्होंने मुझे बहुत से नवाज दिया। अगर मैं बता देती तो शायद इतनी पुरसुकून ना होती। मैंने अब्बा अम्मा को भी नहीं बताया था। मेरे पास मेरी औलाद और मोहब्बत करने वाला शौहर था। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।